Hello students, in this video lecture we will study the difference between the profit organizations and not for profit organization, the organizations which make profit and non-profit making organization we will study. So the primary objective we will points of distinction we will take as per the terms that primary objective. What is the primary objective of profit organizations? So we all know that earn profit, and when it comes to not for profit organization, then their primary objective is what? To provide service. So these two terms will help you to provide services for not for profit organizations, and earn profit is for the profit making organization. Now next one is preparation of trial balance. Now here profit organizations prepare trial balance, but not for profit organizations don't prepare trial balance. They just prepare receipts and payments accounts is prepared. They don't prepare trial balance. Now profit accounting statements, when it comes to the accounting statements, here trading account is prepared, profit and loss account is prepared, and balance sheet is prepared. But in the not for profit concern, that is NPO, the receipts and payments account is prepared, expenditure account is prepared, and the balance sheet is prepared. Now when it comes to the net results, here the net results come as a net profit or net loss. Net profit or a net loss. In the profit organizations, net result we get as a profit in the form of net profit or net loss, but here for the not for profit concern, the net results comes in the form of surplus or deficit. We call it in the form of surplus, that they got surplus income, surplus they have got, or deficit. Here also when we say when there is income is more over expenditure, then we have surplus, and when income is less than expenditures, then there is deficit arises. Okay, then owners fund or capital fund. Here the profit organization owners fund includes owner's investment, how much owner has invested. Okay, that is capital plus reserves and surplus is added. Capital plus reserves and surplus, and here capital fund represents, capital fund means what? Accumulated amount of surplus. Yeah, here what? Now the amount of surplus which is accumulated means which is collected and kept, that is used for the capital fund. Subscriptions amount is used, donation is used, special subscription donations, then surplus as shown by the income and expenditure account is added to the capital fund. How we add to the capital accounts? Net profit, or we subtract net loss from the capital. Here we add in the capital fund if any income, the surplus is there, and we deduct deficit if any deficit takes place. So this is how these 4-5 points explains the distinguish between the profit organizations and not for profit organizations. Coming to the next, need for maintaining books of accounts. Why it is needed to maintain books of accounts, why it is needed to prepare final accounts. Now see, not for profit concerns are not engaged in trading activities. These are not engaged in trading activities. They just deal with the public money, right? Donations and all. They rely on the donation, subscription and all. These concerns collect money such as subscriptions, donations, grants. They get subsidy from the government, entrance fees, etc. from public. These concerns are answerable to the society. They have to answer, they have to keep the transparency, in the accounts. Such money collected and spent, how much they collected, how much they spent. Hence proper books of accounts are to be maintained. For this purpose they need to maintain proper books of accounts. Now following are the reasons for maintaining books of accounts. Now you all must be knowing that not for profit concern, they don't have to pay any taxes to the government, right? Now here, first, to maintain proper control over the monetary transactions, to have the control on, घपला होने का चांस नहीं रहेगा ना, if there will be transparency, how much the organization has received, how much money is spent, right? Then to know the sources of incomes and heads of expenditure, कि कौन से sources से income हुई और कहाँ पे पैसा खर्च हुआ है, to know that. Then to compile
कंपाइल विद द प्रोविजंस ऑफ लॉज एप्लीकेबल टू देम, उनके वो कौन कौन से लॉ उनको फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं उनको कंपाइल करने के लिए. फॉर एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर में. उनको, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट के एक्ट में हमको उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ता है. और नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर तहत वो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. एंड दे हैव टू फॉलो कंपाइल विद द प्रोविजंस द रूल्स रिगार्डिंग द बजट. उनको बजट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, उनकी बुक्स के अकाउंट्स की भी ऑडिटिंग करवानी पड़ती है उनको. रजिस्टर्स टू बी मेंटेन, सारे रजिस्टर मेंटेन रखने पड़ते हैं. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी मेंटेन रखना पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू नो द सरप्लस. अब उनको जानना है कि भाई उनके पास कितना सरप्लस है, कितना डेफिसिट है, राइट, ताकि वो और अच्छे क्वालिटेटिव सर्विसेज दे सके पब्लिक को. देन टू नो द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न, उनकी नेट वर्थ क्या है कंसर्न की एज अ ऑन अ पर्टिकुलर डे, उनकी कितने नेट वर्थ है, वो कितना मतलब उनके पास फंड है वो चेक करने के लिए. देन टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिस मतलब चीटिंग वगैरह अवॉइड होने के लिए. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड एसेट्स, कुछ मिस यूज तो नहीं हो रहा है, मिस एलोकेशन तो नहीं हो रहा है, तो वो सब चेक करने के लिए इसकी नीड है कि ये अकाउंट्स मेंटेन रखने चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को भी. नाउ आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. इसका मीनिंग क्या है? तो द डे टू डे ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट मतलब ये डेली का, डेली बेसिस में डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कैश बुक में डेली का जो होता है रिकॉर्ड किया जाता है. देन दे आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट, बाद में उसको कहाँ पे पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग हो जाती है लेजर अकाउंट्स में. बाद में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, एक बार फाइनेंशियल पीरियड का एंड होता है तो कैश बुक एंड लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, उनको बैलेंस करते हैं, टैली करते हैं. एंड फ्रॉम दीज बैलेंसेस, उनको एक बार टोटल करने के बाद में वो बैलेंसेस को हम फॉरवर्ड करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं. जैसे ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होती है लेजर अकाउंट सब क्लोज करने के बाद, द सेम वे हियर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्या होता है कि सारे है ना कैश बुक प्रिपेयर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसिप्ट कैश का काम चलता है ना, कैश रोकड़ा है, यहाँ पे कोई बिजनेस तो हो रहा नहीं है कि क्रेडिट बेसिस चलेगा, तो यहाँ पे कैश बुक मेंटेन होती है. एंड लेजर अकाउंट सारे जितने भी वो सब क्लोज डाउन बैलेंस करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, राइट, उनको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम शो करते हैं. देन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ये क्या है? रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट कैसे हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हो गए ना, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस. रियल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है, रिसीव होने वाला है, उसकी बात नहीं होती है. सो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. ये क्या है? एक तरीके से लिस्ट है, समरी है इसमें ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, कितना आया बैंक में, कितना है, कितना हमारे पास कैश आया गया, उसका पूरा डिटेल इसमें रहता है. नाउ ऑल द रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड. अभी इसका रूल क्या है कि जितना भी रिसीव हुआ वो सब डेबिट साइड में शो करना है. जितना भी रिसीव हुआ है वो डेबिट साइड में शो करना है. एंड ऑल द पेमेंट्स टू द क्रेडिट साइड, और सारे के सारे पेमेंट हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज दिस अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस. कैसे हम स्टार्ट करते हैं इस अकाउंट्स को? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है डिफरेंट बैंक्स का, उसके साथ ही अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेस इसके स्टार्ट होते हैं. एंड क्लोजेस विद द कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर. और उसी तरीके से कितना बैंक में बैलेंस बचा है एंड ऑफ द ईयर, कितना क्या है बैलेंस, उसके हिसाब से उसका हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाते हैं. नाउ रिसिप्ट्स मींस ऑल द रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड. सारे के सारे यहाँ पे डेबिट होते हैं रिसिप्ट्स, आपको ध्यान रख लेंगे, आपको डेबिट साइड में दिखाना है. ऑल द रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर रिसीव्ड. कोई भी ईयर का होने दो, भले वो लास्ट ईयर का हो, वो करंट ईयर का हो, वो एडवांस हो, सारे के सारे इसमें दिखाया जाता है. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू इनकम है क्या कैपिटल इनकम है. कैपिटल इनकम पता है ना कि ये लॉन्ग टर्म वाली हो जाती है, और रेवेन्यू ये डेली बेसिस वाले हो गए, राइट. तो वो सारे के सारे इसके अंदर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दिखाते हैं. सच रिसिप्ट्स में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, मतलब ये रिस्पेक्टिव मैंने जैसे एग्जांपल आपको दे भी दिया कि ये भले पिछले साल की हो, करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, ऑल द रिसिप्ट्स रिलेटेड टू प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट ईयर, सब के सब हम यहाँ पे शो करते हैं.
नाउ ऑल द रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, सारे के सारे इस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ये इवन रेवेन्यू कैपिटल भी हम इसमें दिखाते हैं। नाउ यहाँ पे पेमेंट्स all the payments made during the particular period are credited to the receipts and payments account। तो पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो करते हैं, टू विच इट इज रिलेटेड, और किससे रिलेटेड है उसके हिसाब से, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, रेवेन्यू इन नेचर रेवेन्यू वाले हैं या कैपिटल नेचर वाले हैं, वो इट डजेंट मैटर, आपको सारा का सारा यहाँ पे शो करना है, दिखाना है पेमेंट्स, भले वो रिलेटेड हो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का रहने दो, चाहिए तो नेक्स्ट ईयर का रहने दो, तो टू ए प्रीवियस ईयर और ए करंट ईयर और ए नेक्स्ट ईयर, सिमिलरली सच पेमेंट्स मे बी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, सारे के सारे यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। नाउ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे दिखाई देगा आपका? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखिए, यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट दिया है, परफॉर्मा दिया है आपको। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, ऊपर टॉप में पर्टिकुलर्स की जगह पे रिसिप्ट्स लिखा है, यहाँ पे टू ऑल रिसिप्ट्स, सारे के सारे रेवेन्यू और कैपिटल जो भी है वो सारे के सारे रिसिप्ट्स यहाँ आएंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर or it is related to the current year or the next year, doesn't matter, all will come under the receipts account, debit side, and all the payments which whether it is in the nature of revenue or capital, it will come, whether it is previous year ka or current year ka or next year ka, all will fall under the receipts and payments account. Now coming to the features of receipts and payments account. Now features, characteristics of रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, मतलब यहाँ पे ना क्रेडिट बेसिस के कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आते, ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स, बैंक एंड कैश वाले। ओके, देन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, ये सिमिलर टू कैश बुक के जैसे ही होता है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इट इंक्लूड्स टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कौन से टाइप के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है वो सबके सब इंक्लूड करते हैं, रेवेन्यू रहने दो या कैपिटल रहने दो। Includes all types of receipts and payments. Now it records all receipts and payments made during a particular period. उस पीरियड में भले वो करंट ईयर का मिला हो, भले वो प्रीवियस ईयर का हो, भले वो नेक्स्ट ईयर का हो, सबके सब इसके अंडर में आते हैं। इसके ये फीचर्स हो गए। देन इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेबल। अभी ये रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, इट इज ड्यू ना, स्टिल एक्रूड इनकम है, ये एक्रूड है, अभी मिलना बाकी है, अमाउंट पे करना है, ड्यू है, आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, तो ये यहाँ पे नहीं आता। इनकम रिसीवेबल एंड पेबल नहीं आता है, मतलब वो जो जस्ट एक है कि मिलने वाला है या देना है, वो इसके अंडर में नहीं लिखते हैं हम। इसके अंडर में जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है और एक्चुअल में पेड हुआ है वो ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अकाउंट के अंडर में आता है। नाउ दिस अकाउंट इज अ बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए होती है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर कंपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को प्रिपेयर करने के लिए हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बेस है। नाउ दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाता है, कैश एंड बैंक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है, एंड इवन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है बैंक से तो उसको भी ये शो करता है। अब आते हैं नेक्स्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी बिफोर आई विल स्टार्ट विद द न्यू वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स किसको बोलते हैं? तो टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो डेली वाली बेसिस जैसी नहीं है, नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर फ्लो। रेगुलर फ्लो देखो, डेली रेगुलर फ्लो नहीं होता है वो इनकम का, फॉर अ कंसर्न ऑफ अ कंसर्न इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि स्पेसिफिक डोनेशंस हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग या स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये रेगुलर का नहीं है। लाइब्रेरी फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, देन सेल प्रोसीड्स हो गया, कोई पेपर न्यूज़पेपर ओल्ड एसेट्स कुछ सेल किया है फिक्स्ड। हाँ, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स आर इधर एडेड टू कैपिटल फंड, या तो इसको है ना हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, नहीं तो सेपरेटली शो करते हैं लायबिलिटीज के अंडर में, बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट्स आर इधर एडेड टू कैपिटल फंड और सेपरेटली शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ सेकेंड
रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं? तो ऑल सच रिसिप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वो है उनका नेचर होता है डेली रेगुलर बेसिस वाले, रिकरिंग इन नेचर होते हैं वो, फ्लो ऑफ इनकम इज रिकरिंग। ओके, नाउ यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन रेंट हुआ, मंथली हुआ, क्वार्टरली हुआ, तो ये रिकरिंग बेसिस के हो गए। लॉकर का रेंट हुआ, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां पे लॉकर लिया है, स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो वहां पे लॉकर लेके रखा हुआ है तो उसका रेंट दे दो। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो ये सब किस में आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल में डिवाइडेड है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती है, रिसिप्ट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल टू पार्ट्स में, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करते हैं हम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी शो अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं वो हम बैलेंस शीट के अंडर में शो करते हैं। तो दिस इज हाउ ऑल द रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम, सारे के सारे रिसिप्ट्स इनकम नहीं होते, वो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कंसिडर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। नाउ द टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, तो पेमेंट्स भी टू टाइप्स के हुए, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे आपने परचेस ऑफ लैंड, लैंड खरीदा है, क्लब बनाना है आपको, राइट, आपको स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, आपको प्लेग्राउंड बनाना है, फिर यहाँ पे फर्नीचर, मशीनरी, ये तो फिक्स्ड वाले हो गए, तो लॉन्ग पीरियड के हो गए। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे है ना वहां पे काम करने वाले जो है, क्लीनर्स है, सफाई करने वाले, अकाउंटेंट्स, उनको सैलरी दिया, टैक्स पे किया कोई, देन इंश्योरेंस, छोटे मोटे टैक्स तो पे करने पड़ते हैं ना, इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ा, इंश्योरेंस निकाल के रखी है कंपनी ने, सॉरी इसने, फर्म ने, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट, सेफ्टी है ना, इट इज जस्ट फॉर द सेफ्टी, इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं हम, राइट, इंडेमनिटी बॉन्ड्स लिए हुए हैं, तो इस हिसाब से ये पेमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर, द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू बी रिसीव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए, लंबे समय को सोचते हुए यहाँ पे खर्चा किया हुआ है, एंड दीज एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो इन सबको हम एसेट्स के अंडर में दिखा लेते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में लेने वाले हैं हम, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट के लिए खर्चा किया हमने, एंड देयर बैलेंसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी ये बैलेंसेस हम कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, मतलब भेज देते हैं इसको, वहां पे भी शो करते हैं। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर एंड द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर एंजॉयड इमीडिएट करंट ईयर में ही उसको एंजॉय किया जाता है। ओके, देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे रेवेन्यू जनरेट होती है। सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए, जैसे एडवर्टीजमेंट कर दिया फॉर मोर देन अ ईयर, एक महीने, एक साल से ज्यादा का, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पेड ₹30,000 इज फॉर 3 years के लिए, तो मतलब हर साल 10,000 खर्चा किया तो आपको रेवेन्यू जनरेट होने वाली हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, राइट, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस मिलने वाले हैं। तो इन सच अ केस 1/3 ऑफ द 30,000, 1/3 मतलब 3 years ना, तो मैंने वो आपको सिखाया भी है कि 30,000 अपॉन 3 फाइनल अकाउंट सिखाने के टाइम पे, तो 30,000 अपॉन 3 किया तो 10,000 पर ईयर का आ गया, तो 10,000 इज फॉर द करंट ईयर, तो ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का 10,000 आया, तो ये कहाँ पे डेबिट करेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करेंगे ये। एंड जो 2/3 है वो एडवांस हुआ ना एक तरीके से एक्सपेंडिचर, तो वो एसेट्स के अंडर में शो करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे हम जो करंट ईयर का है वो लिखते हैं और एडवांस है वो कहाँ पे दिखाते हैं? एसेट्स में दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है। नाउ टोटल रिसिप्ट्स रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की जो टोटल है रिसिप्ट, जैसे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाते हैं, एंड कैपिटल रिसिप्ट्स है तो उसको हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाते हैं, वो हमारे लायबिलिटी बन गई, फर्म की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। देन टोटल पेमेंट्स जो रेवेन्यू रिलेटेड होते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसको शो करते हैं, और ये जो कैपिटल है उसको हम बैलेंस शीट के अंडर में, जो कैपिटल पेमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम शो करते हैं। तो इस तरीके से ये इट इज ऑल अबाउट द टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम इसके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का जो परफॉर्मा है वो स्टडी करेंगे। आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।